देखिए लास्ट टाइम हमने आपको लैडर के बारे में बताया कि इफ देयर आर मल्टीपल कंडीशंस एंड हाउ you will use a joining operator like and or operator, or without using those operators even you can check for your conditions. That depends कि how many conditions and what kind of conditions are given to you. ठीक है, अब आज इसी बेसिस पर हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें वी डोंट हैव टू प्रिंट एनीथिंग लाइक इन द लास्ट सेशन वी हैव प्रिंटेड लाइक द पर्सन इज किड और मच्योर और अडल्ट, या हमने कुछ ऐसा प्रिंटिंग वाला काम किया था, या हमने ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करके दिया. बट टुडे वी हैव टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कंडीशंस. So let's create a new class here and we have to calculate bonus. So first of all तो हम अपना प्रोग्राम ही लिख लें यहाँ पे. मैम अभी वॉइस क्लियर आ रही है? voice is not. Yes. Okay. Write a program to accept current year, comma, name of employee. इनके नेम छोड़ देते हैं, don't not to waste time. Current year, his year of joining, and his basic salary. If he has calculate his bonus and print details on the basis of following conditions. कुछ conditions हैं यहाँ पर हमारे पास. कमेंट के फॉर्म में दे रहे. नाउ पहले तो है years served. तो on the basis of his years served we have to calculate bonus to be given. तो less than 5 years, then 5 to 10 years, then 11 to 15 years, then 16 to 20 years, then 21 to 30 years, and greater than 30 years. ये तो कंडीशन है. अब बोनस है आपको कितना मिलेगा. सपोज बोनस हमको देना है यहाँ पर 0 बोनस, कोई बोनस नहीं देंगे. इफ पर्सन हैज वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लेस देन 5 years देन नो बोनस विल बी गिवन. बट लेस देन अगर 5 से 10 years तक उसने काम किया है देन द अमाउंट ऑफ बोनस विल बी 10,000. इतना काम किया है, इतने साल काम किया है तो 20,000. इतने साल काम किया है तो 30,000. इतने साल काम किया है तो उसको बोनस मिलेगा 50,000. और अगर इससे भी ज्यादा किसी ने काम किया है देन ही विल बी गिवन रुपीज 1 lakh एज bonus. So we have to ask his basic salary, we have to ask his year of joining, and we have to ask current year. And on the basis of this input data, we have to calculate how many years has he served. Then on the basis of that value, we have to calculate his bonus, we have to print his bonus, and we have to add this bonus to his basic salary, and then we have to print that basic salary. Now, how will you calculate that how many years has he served? कैसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? मैं प्रोग्राम यहाँ पर बना रही हूँ, बताइए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वील स्टार्ट विद क्लास नेम. क्लास नेम इज बोनस एंड देन स्टार्टिंग द पब्लिक static void main. Now what values we have to ask? current year के लिए हमने CY ले लिया, और year of joining के लिए ले लिया हमने YOJ, और basic salary के लिए ले लिया हमने D. ये हमने इनपुट अपने ले लिए. Now what to do?
Ma'am, we will minus the year, the current year from the year when he has joined Okay. to get how to many get years the he has. values, हाँ, how many years he has served. तो इसके लिए हमने ले लिया years served के लिए ले लिया YS, and we will subtract value of his year of joining, YOJ, है ना. करंट ईयर में से ईयर ऑफ ज्वाइनिंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ ईयर्स ही हैज सर्व्ड फॉर, व्हिच विल बी स्टोर्ड इन YS वेरिएबल. नाउ वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो if the value of YS is less than what, 5, then what will be the bonus? So we will declare one more variable here, anti YS comma bonus के लिए b ले लेते हैं. तो another variable for bonus will be here, that is b, and we will assign the value of b with 0, because as per first condition we have to give 0 bonus to him. Then another condition that will be followed by else if. Now how will we write our condition? YS is smaller, smaller than 10, sorry. Less than equals to 10. Then b will be 10,000. Another condition, बस अब ऐसे ही सारी condition लगाएंगे. YS is less than is equal to 15. Then b will be equals to 20,000. Again, else if YS is less than is equal to 20, then b will be equals to 30,000. Another condition, if YS is less than is equal to 30, then value of b will be equals to 50,000. नहीं तो that will be come in else block. Else b will be equals to 1 lakh. And then after doing this, now we will print each and everything. Like, first of all, system dot out dot println current year plus cy, then system dot out dot println year of joining plus YOJ, then system dot out dot println years served for YS system dot out dot println his basic salary. बेसिक के लिए भी बी लिया, इसको BS कर देते हैं यहाँ पे. And finally bonus, system dot out dot println bonus awarded B. System dot out dot print salary after adding bonus.
प्लस अब क्या करेंगे, बेसिक सैलरी प्लस B. Now we'll close main and we will close class. तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमने बनाया. अब इसको हम कंपाइल करेंगे. कंपाइल करके क्या बता रहे हैं, हो गया. Now we will compile the program, then we will close it. We'll run main function call. Now here we have to give our input. First of all, we need to write our current year. So current year is 2020. Then his year of joining. तो बहुत टाइम का लगा देते हैं, more than 30 years का कर देते हैं. तो suppose somebody joined here in 1980, है ना, more than 30 years हो गए अभी. एंड बेसिक सैलरी बहुत छोटी सी डाल देते हैं 10,000. तो हमें पता है कि अगर किसी ने 30 ईयर से ज्यादा किया है देन हिज बोनस विल बी 1 लाख. सो हिज बेसिक सैलरी आफ्टर एडिंग बोनस शुड बी 1,10,000. सो आफ्टर प्रेसिंग ओके, सी हाउ दिस डेटा विल बी डिस्प्लेड हियर. करंट ईयर भी प्रिंट हो रहा है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग भी प्रिंट हो रहा है, हिज बेसिक सैलरी आल्सो इज बीइंग प्रिंटेड हियर, हाउ मेनी इयर्स ही हैज सर्व्ड फॉर, दिस आल्सो इज बीइंग प्रिंटेड, what amount of bonus he has been awarded, and after adding this bonus amount to his basic salary, what will be his salary. So this is how we apply conditions. एक और condition लगा के देख लेते हैं यहीं पर ही, 2020 then year of joining बहुत less than 5 years कर देते हैं कि 2019, और उनकी basic salary once again 10,000 है. okay, so यहाँ पे current year ये है, basically year of joining, year served for 1, so bonus awarded 0. That is why his salary after adding bonus is same which was before adding bonus. So this is how you can apply conditions. So calculations भी perform कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब यही करें. देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर हम इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं, जैसे यहाँ तो हमने बोनस किया, एक बार वापस से कुछ भी वैल्यू डाल करके हम इसे क्लियर कर रहे हैं, बस ये हम पूरा विंडो क्लियर कर रहे हैं. अगर यहाँ पे तो हमने ये ऐसे किया कि भाई बोनस की वैल्यू ये है, इट इज 10,000 और 20,000 और 30,000. somehow if the conditions would have been given like, अगर ये दिया होता कि 10% ऑफ बेसिक, आपको ऐसे भी तो दिया जा सकता था कि 10% ऑफ बेसिक आपको कैलकुलेट करना है, तो 10% ऑफ बेसिक जाएगा, देन यही चीज आपको कह दी जाती, कॉपी कर रहे हैं हम इसी को, देन पेस्ट, यहाँ पे हमने दे दिया 12% ऑफ बेसिक, यहाँ हमने दे दिया 15% ऑफ बेसिक, यहाँ हमने दे दिया 25% ऑफ बेसिक, 25% of basic, and here in the last condition I have given 50% of basic. So in each and every condition I need to calculate that this much percentage of basic salary. So what I need to do here in this condition, I don't have to initialize the value. Now I have to say first condition में तो 0 ही है, then in this condition 10% of basic है, तो basic bonus निकालने के लिए क्या करेंगे, basic into 10% of basic, that will be 10 upon 100, or we can say 0.1. इसी तरह से 20% ऑफ बेसिक कितना, 12% ऑफ बेसिक है, तो बेसिक इंटू 0.12, अगेन बेसिक इंटू 0.15, basic into 0.25, and finally basic into 0.50 और 5. तो ये कैलकुलेशन भी कर सकते थे, सिंपली वैल्यूज ही इनिशियलाइज करना, ऐसा कि 10,000 20,000 जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता था. अगेन आई एम कंपाइलिंग दिस प्रोग्राम, बिफोर डूइंग दिस आई एम यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर भी आपका ठीक है. अब हमें यहाँ पे डालना है अपना, फिर से कंपाइल कर रहे हैं अपने पूरे प्रोग्राम को. जब आप पॉइंट में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखिए इनकम्पैटिबिलिटी का एरर आ रहा है, बिकॉज वैल्यू आपने इंटीजर में ली है एंड यू आर मल्टीप्लाइंग दैट इंटीजर विद अ फ्लोट वैल्यू, और दैट इज अ डबल वैल्यू. सो इन दैट केस यू नीड टू इनपुट योर वेरिएबल इन डबल टाइप. डबल कर रहे हैं यहाँ पे, कंपाइल कर रहे हैं,
Now there is no error. Now again I am coming out of this window. Once again I am giving my input. Suppose I have given 2020 here, and now again worked for more than 35 years, that is 40 years, and now the basic salary is 10,000 and okay. See, अभी क्या है, बोनस अवॉर्डेड. अब ये बोनस जो है 50% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो 10,000 बेसिक है तो उसका 50% कितना हुआ, 5,000 ही हुआ. तो 5,000 हमारी बेसिक सैलरी में ऐड हो गया. गेटिंग माई पॉइंट आयुष, क्लियर है? Yes, ma'am. तो इस तरीके के बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, ऑल दोज क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसिडर्ड. एंड मीनवाइल आपको जो है एक्सरसाइज करनी है प्रैक्टिस के लिए भी, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए. कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट होता है, सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट क्वेश्चन. आई विल हेल्प यू आउट कि हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन और हाउ टू अप्लाई कंडीशंस. ठीक है? अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट वैसे भी मुझे भेज दीजिए कि मैंने ये क्वेश्चंस अप्लाई किए हैं, इनको मैंने एक्सरसाइज में लगा के देखा है, और सो दैट आई मे कम टू नो कि हाँ आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है? इसके अलावा कंडीशंस में जैसे आपने देखा कि आप एंड ऑपरेटर का यूज करके ज्वाइन कर लेते हैं या और ऑपरेटर को यूज करके ईदर ऑफ द कंडीशन आप चेक करते हैं. There is one other kind of operator that helps us to join a condition. Even we can use those conditions on the basis of nesting, but nesting is somewhat tricky, so we avoid using nesting in that particular operator, using that operator. But that operator helps us to apply single condition, and that condition is known as special operator or conditional operator. Another name also is given to this special operator, that is known as ternary operator. टर्नरी ऑपरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है. सबसे पहली बात तो व्हाई इज इट नोन एज टर्नरी ऑपरेटर? यूजुअली कोई भी ऑपरेटर जब आप यूज करते हैं तो दोज आर ईदर यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स इन विच द ऑपरेटर इज फॉलोड बाय एन ऑपरेंड. Some value is given, so a name of the variable is given after operator. Some kind of operators are known as binary. Most of the operators are binary, on which the operand is given on the both hands of operator, like plus, minus. ये सब क्या है? These are binary operators, because you need to write name of variable on both the sides of operator, like a plus b. Then plus is a kind of binary operator. On both the sides, we are having some operand that can be a variable or that can be a value. Like 2 plus 5, again it is a binary operator, or a plus b again. So plus है, star है, all these operators are kind of binary operator. And unary operators बहुत rare होते हैं जावा में, but still only one operator is there that is followed by the operator is known as unary operator. बट एक ही एक ऐसा ऑपरेटर है जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, बिकॉज देयर आर 3 ऑपरेंड्स with this operator. That is why it is known as very special operator and comes within the category of conditional operator. Again, this operator helps us to apply, to check a single condition, or we can even check multiple conditions. Like I said that we can use it in nesting, but the concept must be very clear. तो अभी तो खैर हम बहुत सिंगल कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे. लाइक इफ आई वांट टू प्रिंट ग्रेटर नंबर आउट ऑफ द 2 वैल्यूज एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर, तो आप क्या करते हो? आपको मैंने बताया कि 2 तरीके हम यूज कर लेते हैं. मतलब हम तो कंडीशन लगाते हैं कि इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द अदर वन, प्रिंट दिस वन इज द ग्रेटर, अदरवाइज द सेकेंड वेरिएबल इज ग्रेटर. यही तो करते हैं आप. लेकिन अगर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करें तो हम ये काम कैसे करेंगे? तो कंट्रोल एन से एक नई क्लास बना रही हूँ मैं, और यहाँ पर इसका जो है मैं लिख देती हूँ, स्पेशल लिख देती हूँ इसको. है स्पेशल ओपी, ये लिख लेती हूँ, कॉपी कर लेते हैं इसको. क्लास. नाउ ओपन द एडिटर विंडो ऑफ दिस क्लास. क्लास नेम. नाउ कमिंग टू आवर मेन फंक्शन. Using these ternary operators, our code also becomes very short. Now again we have to ask 2 values, one is a and the other one is b. Now we have to compare between a and b, and we have to print the greater one out of these values. So how we will use ternary operators, and by using this ternary operator how we will print the value. So first of all, I need to store this output, the output, into some integer variable. So I have taken another variable here, c. And now in C, I will apply that condition. How can I apply? First of all, I will tell you how to write that. So first of all, here the test condition is given.
test condition is given here and two symbols are used here. One is this question mark and the other one is colon. These two symbols are collectively known as ternary operator or special operator. And using these operators, we will write our operands along with these operators. So this question mark represents print and this colon represents else. Now how we will apply this? I will say C and now I will apply my condition. A is greater than B. Print A else print B. तो कुछ आपको if लिखने की जरूरत नहीं पड़ी. No need to write any else statement. No need to give any true clause or false clause. Entire thing is given in this whole statement. Now I simply, what I need to do, I simply have to print the value of C because my output is being stored here in C. I will just explain it how it comes here. Greater is plus C. Close main, close class. First of all, I will show you the output of the program. Method call. Now I am giving smaller value and then I am giving a bigger value here. See, greater is 25. Clearing this one, closing it. Now I am giving you bigger one first and the smaller value afterwards. But again, it is printing the greater value. So how this option works, how this operator works, now I will explain you the working of this one. See here, this test condition is given first of all. तो एक operator तो ये हो गया. This A written here is second operator. एक operand. First operand is this test condition. Second operand is this variable A. And third operand is this variable B. So that is why this is known as ternary operator, because there are three operators used along with this operator. Two operators हैं and three operands हैं. ये हमें यहाँ पे ये सिर्फ इसी में होता है, अदरवाइज किसी में नहीं होता है. तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कंपाइलर चेक्स द कंडीशन. सपोज A is 12 and B is 25, then it will check if A is greater than 12 is greater than 25. If the condition is yes, then it automatically comes to this true block. This is the true block here, and whatever is written here, it will be printed. Otherwise, it will be printed. It will come to else block, false block, and then whatever the statement is given here or whatever the values to given here, variable is given here to be printed, the value of that variable is stored in C. And as soon as I print the value of C, output is printed here. जरूरी नहीं है कि इसके आउटपुट को आप किसी वेरिएबल में ही स्टोर करो. टू मेक इट मोर शॉर्ट आप क्या कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, कोई जरूरत नहीं थी. जब सी आपने डिक्लेयर ही नहीं किया तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट दिस एंटायर कोड, you have to cut it from here and simply you can apply this whole condition with this print statement here. Need not to give this semicolon. Now after coming to this place, as soon as compiler will read this statement, it automatically will come to this place and will test the condition and will act according to the given condition. See, I'm compiling this program. कंपाइल कर दिया पूरे स्टेटमेंट को एक ब्रैकेट में रख करके. नाउ अगेन कम टू दिस मेथड कॉल विंडो. आई एम गिविंग 10 एंड आई एम गिविंग 20 हियर, टू डिफरेंट वैल्यूज एंड सी ग्रेटर वैल्यू इज प्रिंटेड. तो इतना छोटा हो सकता था टर्नरी ऑपरेटर्स ये प्रोग्राम, प्रोवाइडेड कि यूजर को समझ में आए. बट if your exams are concerned or if you are asked to do such kind of task using ternary operator, तो आप if else अगर यूज भी करते हो तो you won't get numbers. मार्क्स तभी मिलेंगे जैसा इंस्ट्रक्शन है. क्वेश्चन में अगर कहा गया है कि यू हैव टू यूज टर्नरी ऑपरेटर, तो टर्नरी ऑपरेटर यूज करना ही है. अगर उन्होंने एज सच कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, देन आप अपने कंफर्ट लेवल को देख लो कि विद विच कॉन्सेप्ट यू आर कंफर्टेबल विद. अगर आप टर्नरी में कंफर्टेबल हो तो डू एज आई हैव टोल्ड यू, अदरवाइज आप इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं. क्लियर है आयुष? Yes, ma'am. Okay. One more example I am giving you of this ternary operator.
Suppose I have to ask balance. Now I have to ask value of amount in the bank. ठीक है, पहला तो ये मांगना है. देन आई हैव टू आस्क अमाउंट विदड्रॉन, तो ड्रॉ लिख देते हैं. ठीक है, और अभी जैसे ही अमाउंट और विदड्रॉन अमाउंट मिल जाए तो ये चेक करना है कि इफ अमाउंट टू बी विदड्रॉन इज ग्रेटर देन द वैल्यू विच इज अमाउंट इन द बैंक, तो एक मैसेज आप दे दीजिए कि नो ट्रांजैक्शन पॉसिबल. अदरवाइज आप दे दीजिए कि इतना अमाउंट आपका डिडक्ट हो गया. ओके, मतलब दिस मच अमाउंट डिडक्टेड, ऐसा कुछ आपको करना है. तो अभी ये भी अगर टर्नरी ऑपरेटर से करना है तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमें सबसे पहले टेस्ट कंडीशन चेक करनी है, अमाउंट ड्रॉ. तो हम कहेंगे इफ ड्रॉ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अमाउंट, ये हमारी कंडीशन है. अगर ऐसा है तो क्या करिए, तो प्रिंट कर दीजिए नो ट्रांजैक्शन पॉसिबल, तब तो ये प्रिंट कर दीजिए. अदरवाइज क्या कीजिए, अदरवाइज आप क्या करिए कि आप कैलकुलेट कर दीजिए कि कितना अमाउंट रह गया, तो अमाउंट माइनस ड्रॉ, और इस पूरे स्टेटमेंट को एक सेपरेट ब्रैकेट में डालिए, और यहाँ पर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जरूरी नहीं कि आप उसे अलग से किसी वेरिएबल में स्टोर करें. ये पूरा आपने करा और इसको फिर से एक ब्रैकेट में डाला, यहाँ पे किया एंड दिस. आपने क्लास क्लोज किया, आपने ये क्लोज किया, आपने कंपाइल किया, आपने क्लोज किया, और यहाँ पे अब मान लीजिए अमाउंट थी 20,000 और मैंने विड्रॉ करने के लिए बोल दिया 21,000. ठीक है, ओके, नो ट्रांजैक्शन पॉसिबल है ना, एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस. बट अगर अमाउंट थी 20,000 और हमने विड्रॉ किया 10,000, तो अमाउंट लेफ्ट इज 10,000. तो इस तरह से कोई भी ऐसा काम आपको करना है तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. एंड यू सी हाउ सिंपल इज इट टू राइट. आपको कुछ ज्यादा काम नहीं करना. नो इफ इज देयर, नो एल्स इज देयर, बट द थिंग इज दैट यू शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस कॉन्सेप्ट. अदरवाइज अगर यहाँ थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है देन यू वोंट बी एबल टू रेक्टिफाई इट, मतलब दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो ये टर्नरी ऑपरेटर का ऑप्शन है. अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडीशनल ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, या पूछा जा सकता है व्हाट इज द काइंड ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, है ना, टाइप हाउ विच टाइप ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इज. देन द टाइप ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इज it's a ternary operator, then it is a conditional operator. और ये पूछा जा सकता है कि how many operands are there in a ternary operator. There are 3 operands in a ternary operator, and sometimes you may be asked to write a program using ternary operator. Then you have to make this program in this manner. Clear? Yes, ma'am. चलिए, तो ये तो हो गई इफ और टर्नरी और ये सब हो गया. अब इसके बाद हम बात करते हैं regarding switch statement. That day I told you that switch statements are used to make a very special kind of program, that is menu driven program. And menu driven program is a kind of program in which the program is derived from a menu, that is a list of options. Now suppose, so first of all in this kind of program you need to write a menu, you need to give a list of options to the user. User has to opt a single choice out of those options, and then you have to act according that choice. But before doing that, you need to know how we can write a switch statement. So we are starting with a new class. Now option लिख देते हैं यहाँ पे नाम हम, या list दे देते हैं. list. तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हम आज बना रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन कल हम इसी पे आपको कुछ और प्रोग्राम्स भी बना करके दिखाएंगे यहाँ.
अभी क्या है कि पब्लिक लिस्ट, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। वैसे तो एक्चुअली क्या है कि ये मेन्यू पहले आपको दिखना चाहिए। जब आपको मेन्यू दिखेगा तभी तो ना आप चॉइस मांगोगे। आपको पहले से क्या पता कि आपको क्या चॉइस मिली। तो अगर आपको मेन्यू दिखना चाहिए तो वो मेन्यू कहाँ दिखाई देगा? वो मेन्यू तो आपको टर्मिनल विंडो में ही दिखाई देगा। और अगर मेन्यू टर्मिनल विंडो में दिख रहा है, दैट मीन्स कि इनपुट भी आपको टर्मिनल विंडो में ही लेना है, तो वो तो टर्मिनल विंडो में लिया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ, वो चीज हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल हम एक चॉइस मांग रहे हैं और वो चॉइस हम इंटीजर में ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिया और इंटीजर में उसे डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ हम कुछ मेन्यू दे रहे हैं, लिख दे रही हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पर हमने दे दिया, सपोज फर्स्ट हमने दे दिया नेम्स ऑफ कंट्रीज, ऐसे लिख देते हैं नेम्स ऑफ 3 कंट्रीज। बस पहली चॉइस है नेम्स ऑफ 3 कंट्रीज। फिर दूसरी चॉइस है नेम्स ऑफ 3 स्पोर्ट्स, और एक और चॉइस दे दी system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम्स ऑफ 3 प्लैनेट्स। ठीक है, अब अगर यूजर 1 देता है दैट मीन्स कि नेम्स ऑफ 3 कंट्रीज शुड बी प्रिंटेड। अगर यूजर 2 प्रिंट करता है, 2 चॉइस डालता है, तो नेम्स ऑफ 3 स्पोर्ट्स मस्ट बी प्रिंटेड। और अगर यूजर देता है 3, देन नेम्स ऑफ 3 प्लैनेट्स शुड बी प्रिंटेड। ये करना है एक्चुअली। और इसके अलावा यूजर कोई चॉइस देता है तो उसको बताना है कि यू हैव गिवन एन इनवैलिड चॉइस। तो इसके लिए जो चॉइस आई है वो तो हमारी मेन मेथड कॉल में ही मिल गई हमको। तो जो चॉइस है वो किस वेरिएबल में है? चॉइस नाम के ही वेरिएबल में है। तो जो हम जिस वेरिएबल में हम अपनी चॉइस डालते हैं, स्विच कीवर्ड को यूज करते हैं और चॉइस हम उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, जो भी नाम रहेगा। यहाँ चॉइस लिखा है तो यहाँ चॉइस हो गया, यहाँ सी एच लिखा होता तो यहाँ सी एच होता। एंड देन वी वोंट टर्मिनेट दिस स्टेटमेंट विदाउट typing that semicolon. Will come to next line and then we will start switch statement starting with curly brace. अभी क्या है, अब पहली चॉइस है आपकी, पहला केस क्या है? पहला 1 केस है, फर्स्ट केस। तो उसको हम डिफाइन करते हैं केसेस के अंदर। तो केस 1 like this, then we will print colon, and now what we are expected to do, we are expected to print name of 3 countries. तो प्रिंटिंग ही तो करानी है तो प्रिंट करा देंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट। 3 कंट्रीज का नाम अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है, हम एक साथ करा सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया इंडिया, और न्यू लाइन में आने के लिए दे दिया यहाँ पर अमेरिका, और तीसरा दे दिया मान लीजिए हमने कनाडा। ये 3 कंट्रीज के नाम दे दिए। स्लैश एन इज यूज्ड टू प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन। तो ये हो गया। नाउ फर्स्ट केस इज कंप्लीटेड, but as soon as it is completed, then we have to give another statement, and that is using a keyword that is break to terminate this case. ये केस यहीं पर खत्म हो गया, and now before starting with another case we have to write this break statement so that the first case will be broken here. Up, coming towards next case, case 2. Now what we have to print here? Name of 3 sports. So again system dot out dot system dot out dot print. अभी क्या है? स्पोर्ट्स है, हॉकी स्लैश एन, क्रिकेट स्लैश एन, बैडमिंटन। Again we have to give break statement. Then coming towards next case, that is third one, case 3, system dot out dot print. Now names of 3 planets, Jupiter slash n, Mars slash n,
वीनस। ठीक है, कुछ भी नाम लिख दिया, ये किया, ये किया, सारे केसेस खत्म हो गए। तो फाइनली यहाँ पर इसको भी हमने ब्रेक कर दिया। बट हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यूजर 1 2 3 के अलावा कुछ और देगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है, यूजर का आप हाथ थोड़ी रोक सकते हो सकता है वो 5 दे दे, 8 दे दे, 1000 दे दे। तो अगर वो 1 2 और 3 के अलावा कोई और चॉइस देता है, देन यू डोंट हैव टू रिमेन म्यूटेड, you have to respond as per that invalid choice also. For that you have to write here default statement. ये default statement लिखा जाता है, it is another keyword here used in Java. और डिफॉल्ट के बाद कोलन लगाएंगे और आप कोई भी इनवैलिड चॉइस के रिगार्डिंग मैसेज दे देंगे। जैसे आप लिख सकते थे इनवैलिड इनपुट, है ना, और इसको आप क्लोज कर दें। आप चाहें तो और स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्रेस 1/2/3, है ना, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। डिफॉल्ट स्टेटमेंट स्क्रीन इज नॉट करेक्ट। डिफॉल्ट स्टेटमेंट मैम डिफॉल्ट स्टेटमेंट screen. Ma'am, it's showing black screen on default statement. नाउ अभी क्लियर है? No, ma'am. Yes, ma'am. क्लोज करेंगे इसको, क्योंकि डिफॉल्ट को आप ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट को ब्रेक नहीं किया जाता। फिर आपने क्लास को क्लोज कर दिया, मेन को क्लोज कर दिया, ये पहला स्विच क्लोज किया, फिर आपने मेन क्लोज किया और अब आपने क्लास को क्लोज कर दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद अपने मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पर। अब चॉइस, तो ये अब यूजर को कैसे पता हो कि मुझे क्या एंटर करना है ना, तो इसीलिए एक्चुअली चॉइस कहाँ लेनी चाहिए थी, जब हम प्रोग्राम चला रहे हैं टर्मिनल विंडो में। बट उसके लिए तो हमें Yes, पता ma'am. होना चाहिए कि कैसे वो इनपुट लिया जाता है, तो दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट सेशन। बट यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है 1 या 2 या 3 दे, तो अगर 1 दिया तो देखिए पहले मेन्यू प्रिंट हुआ, 3 कंट्रीज, ये इंडिया, अमेरिका, कनाडा प्रिंट हो गया। क्लियर करेंगे, वापस जाएंगे। अगर 2 दिया तो देखिए नेम ऑफ 3 स्पोर्ट्स प्रिंट हो गए। और अगर हमने यहाँ पर चॉइस दी होती 3, तो नेम ऑफ 3 प्लैनेट्स प्रिंट हो गए। बट एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या था, रिक्वायर्ड ये था कि पहले ये तीनों लाइनें प्रिंट होती, फिर यूजर से चॉइस मांगी जाती और उस चॉइस के अकॉर्डिंग काम होता, है ना। तो वो इनपुट स्टेटमेंट कैसे यूज होती है हम आपको आगे के सेशन में बताएंगे। और अगर कोई ऐसी चॉइस दे दी होती, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया होता 4, बट दैट इज नॉट गिवन इन अवर प्रोग्राम, तो क्या प्रिंट हो रहा है, इनवैलिड इनपुट, प्रेस 1 और 2 और 3। तो दिस इज हाउ दिस स्विच केस वर्क्स। इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं आगे, हम अपने अगले सेशन में भी स्विच को ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस आल्सो यूजिंग दिस केस, हाउ टू यूज दीज केसेस और हाउ मेनी काइंड्स types are there that we can use these cases, so that we will discuss in our next session. Meanwhile आपको जो भी सिंपल प्रोग्राम्स लगते हैं अपने स्विच केस के आप बना सकते हैं, तो आप जरूर ट्राई करिएगा और बाकी अपनी एक्सरसाइज भी आप ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर? और कोई भी डाउट है तो प्लीज जरूर बताइएगा मुझे। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you, ma'am. ओके बेटा।